राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम के समापन के बाद मैं आपका स्वागत करता हूं संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और अब बात करेंगे 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या संकेत हैं, क्या संभावनाएं उभर के आ रही हैं राज्यों में, उस पर चर्चा करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि उभर के तस्वीर सामने आ रही है, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की जो सीटें हैं उनके लिए मतगणना जारी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें सत्ता की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। नागालैंड में जहां बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिख रहा है, वहीं त्रिपुरा में बीजेपी बहुमत के करीब है। जाहिर सी बात है मेघालय पे भी सबकी नजरें लगी हुई हैं क्योंकि वहां पर एक प्रकार से अभी बहुमत किसी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। टीना, बहुत ही दिलचस्प किस्म के परिणाम उभर के सामने आ रहे हैं। Absolutely, Manoj. So, it's been a little over more than 4 hours since counting began in all of these 3 states where assembly elections were held. And the picture seems to be quite clearer in Nagaland, where the BJP plus NDPP seem to have taken a giant lead. In Tripura, after a lot of fluctuations since morning, the BJP now seems to be in a comfortable position. They seem to have crossed the halfway mark. In Meghalaya, of course, the hung assembly prediction of the exit polls seems to be coming true. The NPP emerging as the single largest party, but not with an absolute majority. So they will have to apparently join hands with one of the other parties to form a government. So which of these parties will it actually be? Will it be the BJP once again, with whom the NPP will choose to go? Or will it be the Congress or the TMC, who are also hovering somewhere around 5 seats? That's what the current trends and leads predict. But we'll be analyzing with a team of experts who are joining us on the program about where the elections in Meghalaya and Tripura and Nagaland are heading to. So the picture, of course, quite interesting in the state of Meghalaya. So let me first introduce our guests who are joining us on the program. Senior journalist Mr. Pradeep Kaushal and Mr. Ajit Shukla. He's an election expert, a psephologist. Thank you, gentlemen, for joining us on the program. Mr. Kaushal, let me begin the program today with you. So Nagaland, we are seeing since morning the kind of leap that the BJP plus NDPP has taken. The picture has been clear. It's Tripura and Meghalaya where we've seen a lot of fluctuation. Let's begin talking about Tripura first. Meghalaya, the exit polls predicted it is going to be a hung assembly. Tripura was where the BJP was supposed to stage a comeback. But for close to 2 hours, the BJP hovered somewhere around 24, 25. The Tripura Motha, a relatively new party, seems to be giving it a tough competition. How do you see the emergence of the Tripura Motha in Tripura? How challenging will it be for the BJP, even if the party manages to form the government? I think it's going to be difficult, but I think they'll be able to work out an alliance. The foremost question is, what is Tripura Motha, the new tribal party? The founder of the party, Pradyot Dev Burman, he is a former congressman. Yes. He was a president of the state Congress committee. His father was a 3-term member of the Lok Sabha on the Congress ticket. His mother was also an MLA, Congress MLA, very familiar person in Delhi. Bibhu Kumari Devi. Everybody, at least the old-time journalists, they are all familiar with her. So he was asking for a state within the state. I think he also held detailed discussions with the BJP leadership to try working out a formula acceptable to both sides ahead of elections. But that was not possible because for the BJP, it was going to be a very costly affair. If it could ensure the support of Tripura Motha to the BJP, it could work against the party interest on the other end, the non-tribal population. Right. It won't have been acceptable to the non-tribal population, the mainstay of the BJP support base. So therefore, no understanding could be worked out. But I understand the BJP is already working on an alliance with Tripura Motha. Some compromise formula will be found. And I think the BJP will try to meet his demands, not completely, but to some extent. And then they'll decide to work together. So I think Manoj, एक pre-poll alliance तो नहीं हुआ, लेकिन post-poll alliance की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई हैं। बिल्कुल इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। त्रिपुरा में खासतौर से अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उससे एक ऐसी उम्मीद
व्यक्त की गई थी कि शायद कोई करिश्मा वहां पर होगा, लेकिन करिश्मा हुआ नहीं। करिश्मा यह हुआ कि बीजेपी लगातार दूसरी बार त्रिपुरा में सरकार बनाने के करीब है, बहुमत के करीब है। क्या समीकरण है? अजीत शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि टिपरा मोथा की बात हो रही है। उम्मीद की जा रही थी एक तरफ टिपरा मोथा, दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन कुछ राज्य में घटित होगा, लेकिन ऐसा कुछ घटित होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा में जो है शुरू से ही वाम फ्रंट का बहुत लंबे समय से वामपंथी सरकारें रही हैं, लेकिन अभी इस बार जो है, पिछली बार जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उस समय में बीजेपी और आईपीएफटी ने गठबंधन किया था और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाए थे। इस बार हुआ क्या कि जो कांग्रेस जिससे गठबंधन किया वाम फ्रंट ने, वो कांग्रेस से लगातार ये आपस में रंजिश रहा है, राजनीतिक रंजिश रहा है हमेशा। वहाँ एक बहुत बड़ा इतिहास है मर्डर का भी, पॉलिटिकल वायलेंस का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और उस पार्टी से किया तो ग्राउंड पे वो चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हुई जिन चीज़ों को लेकर। और दूसरी चीज़ है कि जब अगर गठबंधन कोई करता है तो पार्टी जब वाम फ्रंट थी और लंबे समय तक थी, उसके बाद फिर आप किसी पार्टी से अगर जो आपका राइवल रहा हो उससे अगर आप कर रहे हैं गठबंधन, इसका मतलब आप कमज़ोर हुए कहीं ना कहीं। और ये जनता कहीं ना कहीं उस चीज़ को सही ढंग से जो है एडजस्ट नहीं कर पाई, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई इस चीज़ को कि ये लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे या नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर उन अभी करंट में 32 सीटों पर लीड कर रही है, एक आईपीएफटी है 33 सीटें हो गई, एक इंडिपेंडेंट है वो भी बीजेपी का ही है, जो सपोर्टर है वो लीड कर रहा है। तो लगभग 34 अभी करंट में 34 सीटों पर लीड कर रहे हैं ये लोग। तो स्पष्ट रूप से उन्हें बहुमत मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, उसमें कोई इफ बट्स नहीं है कि नहीं मिलेगा। टिपरा मोथा बेसिकली जो टिपरा मोथा है उसने कहीं ना कहीं ट्रैक्शन पाया है ट्राइबल वोटर्स में। वहाँ पे मनोज जी जो है वोटर लगभग जो है 32% के आसपास ट्राइबल वोटर्स हैं और 60 के आसपास जो है वोटर्स बंगाली वोटर्स हैं। लगभग 8% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 कैंडिडेट मुस्लिम दिए थे। तो पहला तो हुआ कि जब इलेक्शन जब शुरू में जब ये लोग टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन, सीट शेयरिंग की बात जब कर रहे थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, उस समय ही 17 को पुट कर दिया था कांग्रेस ने। फिर बाद में उसने वापस लिया और 14 पे लड़े। तो आपस में ही इन लोगों का रिफ्ट शुरू से ही दिख रहा था। प्लस जो है जब अगर वाम फ्रंट की बात करें तो वाम फ्रंट का 25 साल का शासन था। जी टिपरा मोता वाला टीना जी बहुत महत्वपूर्ण पहले इसलिए है क्योंकि आदिवासी जो सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी का भी एक तरह से दावा रहा उन सीटों पर कि बीजेपी ने आदिवासी जो बहुल है, जो वर्ग है, उसके लिए कितना कुछ राष्ट्रीय स्तर पे विकास की दृष्टि से किया है। बीजेपी का जो गठबंधन साथ में जिस पार्टी से था वो भी आदिवासियों के बीच में खासा प्रभाव रखती है, लेकिन टिपरा मोता के उभर के आने के बाद आदिवासी वहां की राजनीति में केंद्र में आ गया था। एक महत्वपूर्ण पहलू वहां का रहा। प्रदीप जी, अगर इस पहलू को देखा जाए आदिवासी राजनीति को, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक स्तर पे तो भाजपा ने संदेश दिया है राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी समाज की महिला जो हैं उनको सर्वोच्च पद दे करके एक संदेश उन्होंने दिया है जनजाति से जो भी लोग जुड़े हुए हैं जनजातियों से उनको। दूसरी बात यह है कि अगर प्रद्योत जी की कोई मांग है उसको पूरा करने का प्रश्न है तो भाजपा सत्तासीन दल होने के नाते उस मांग के ऊपर कुछ न कुछ उनको दे सकती है। मुझे ये नहीं लगता, और हमेशा ऐसा होता ही है जब आप संघर्ष करते हैं तो आपकी सारी मांगें एक ही बार में कोई नहीं स्वीकार करता, लेकिन ये है कि कुछ हद तक अगर वो कुछ अपने पक्ष में आदिवासी समाज के पक्ष में कुछ उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने की दिशा में अगर वो भाजपा से कुछ निर्णय करवाने में सफल हो जाते हैं तो वो ये दिखाने में भी अपने लोगों को दिखाने की स्थिति में आ जाएं कि देखिए ये हमारी उपलब्धि है। इस प्रकार की कोई उपलब्धि की गुंजाइश दूसरे पक्ष के साथ जाने में नहीं रखी। दूसरी बात ये है कि भले ही थोड़ी कम बहुमत की सरकार बने लेकिन आंकड़े अभी भी भाजपा के पक्ष में हैं, क्योंकि कम से कम स्पष्ट बहुमत तो उनके पास है ही।
और एक मानसिकता रहती है उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में, सभी दलों में, जो भी दल होता है या विधायक होता है, वो केंद्र में जो दल सत्ताधारी होता है उसके साथ जाने की तरफ उसका रुझान रहता है। तो उस दिशा में भी अगर आप देखें तो ये एक बात भाजपा के पक्ष में है कि वो केंद्र में है, और केंद्र का अगर सत्ताधारी दल आपके साथ खड़ा होता है तो एक स्थायित्व का संदेश जाता है कि यह सरकार चलेगी और अपनी मांगे मनवाने की भी संभावनाएं ज्यादा रहती है आने वाले वक्त में। अजीत जी, मेघालय की अगर बात करें तो बीजेपी 2 सीट से आगे बढ़ती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया था, काफी सीट्स पर वो चुनाव लड़े, उस तरह का, उस अनुपात में उनका रिजल्ट नहीं रहा। ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं है। एनपीपी बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगी या टीएमसी या कांग्रेस भी, जो कि तीनों ही अभी फिलहाल 5 सीट्स पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको एक्सपेक्टेशन फंड का एक्सपेक्टेशन रहता है और उनको ज़्यादा सपोर्ट, सेंट्रल का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उन्हें, तो वो ज़्यादा उम्मीद यही की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। हालांकि उन लोगों का आपस में भी रिफ्ट है, क्योंकि बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए एनपीपी के ऊपर में, और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा उन लोगों ने विरोध किया। लेकिन वहाँ छोटी छोटी भी पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड लाइन ये है कि वो जो है वो भाजपा के साथ ही जाने की संभावना है। जबकि अगर भाजपा के साथ नहीं भी जाते हैं अगर, तब भी वो सरकार बना सकते हैं। यूडीपी क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी वहाँ पे उभरी है, वो यूडीपी को लगभग 8 सीटें अभी दिख रही हैं कि लीड में हैं। तो अगर ये लोग अगर बीजेपी को नहीं भी लेते हैं, फिर भी बीजेपी एक सपोर्ट रहेगा उनका। और जो एक्सपेक्टेशन था, हालांकि जो एक्सपेक्टेशन था भारतीय जनता पार्टी का कि ज़्यादा सीटें लेंगी, वो एक जो है क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, और क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट होने की वजह से वो ट्रैक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी बीजेपी बेहतर की है पहले से। पहले तो 2 सीटें आई थी, अब 5 आई हैं, और बीजेपी हर जगह पे ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती रही है। आप किसी भी स्टेट्स को उठा के देखेंगे अगर पैन इंडिया, तो जो उसका जो बढ़ने का क्रम है जो भारतीय जनता पार्टी का, इसी तरह 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे होती है, और उसका एक्सपेंशन होता है। और प्रदीप जी, जहां एक तरफ बीजेपी बढ़ रही है, मेघालय में, त्रिपुरा में देख रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है, नागालैंड में बीजेपी प्लस एनडीपी है, कांग्रेस का एक डाउनफॉल हुआ है। पिछली बार मेघालय में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, वहां से कुछ 20 से 5 पर आ जाना और अपना काफी वोटर बेस भी खो देना कांग्रेस के लिए काफी चिंताजनक है। देखिए, अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा, कांग्रेस का एक रुझान है कि बड़ा अनमने तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की जिस प्रकार की भागीदारी उसमें होनी चाहिए चुनाव अभियान को लेकर के, उस प्रकार की भागीदारी नहीं है। गुजरात के चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो एक प्रकार से उदासीन रहा। राहुल गांधी ने इक्का दुक्का कुछ रैलियों को संबोधित किया, लेकिन वो बात नहीं। हिमाचल में भी प्रियंका गांधी ने थोड़ा बहुत प्रचार किया, श्रेय अधिक दिया गया, लेकिन उनकी भागीदारी उतनी थी नहीं। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व में एक तो ये कमी आपको दिखाई देती, उदासीनता दिखाई देती है। दूसरा, अपने लोगों को आपको साथ संजो के रखना पड़ता है, जोड़ के रखना पड़ता है। जो उत्तर पूर्व के अंदर भाजपा के संकट मोचक हैं, जो सूत्रधार हैं, वो पुराने कांग्रेसी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, तो उनको पार्टी अपने साथ जोड़ के रख नहीं पाई। प्रद्योत जी, जैसे मैंने उल्लेख किया, तो प्रद्योत देव बर्मन, वो भी कांग्रेसी विचारधारा की पृष्ठभूमि है उनकी, उसी परिवार से आते, कांग्रेसी परिवार से। तो कांग्रेस में कहीं एक प्रकार की उदासीनता है, और दूसरा जो संगठनिक उनको वो दिखानी चाहिए इच्छा शक्ति चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, वो इच्छा शक्ति का अभाव है। और तीसरा, जो गठबंधन कर रहे हैं वो तात्कालिक गठबंधन है लेफ्ट के साथ। जैसे शुक्ला जी उल्लेख कर रहे थे, आप गठबंधन दिल्ली में बैठ कर के बंद कमरे में मेज पे कर लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता को एक दूसरे के साथ परस्पर
सहयोग अगर करना हो तो उसके लिए आपको वैसी सोच तैयार करनी पड़ती है, वैसा भाव तैयार करना पड़ता है। ये एक दिक्कत रहती है अजीत जी की लीडरशिप लेवल पे तो आपने अलायंस कर लिया, लेकिन फुट वर्कर्स, पार्टी के जो वर्कर्स हैं और मतदाताओं में उस तरह का एक्सेप्टेंस नहीं होता है, क्योंकि दशकों से आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेवल पे भी उन लोगों का हमेशा जो है पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है ना, तो एक जो परस्पर सम्मान होना चाहिए लोग, तो फिर पहले ही जब सीट शेयरिंग हो रहा था उस समय में ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी कि जब सीट शेयरिंग में उन्होंने पुट किया 17 और फिर बाद में वापस लिया उन्होंने सीटें और फिर 14 पे आए, तो उस समय ही ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, त्रिपुरा में ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। टिप्रामोथा लगभग जो है एक्सपेक्टेड 16 to 22% वोट शेयर ले जाएगी। और जी अजय शुक्ला जी, एक एक राज्य को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह माना जा रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद कांग्रेस के लोगों को उम्मीद थी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों से जिस तरह के परिणाम आए हैं, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा से कम वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कुछ लेके नहीं आए। त्रिपुरा में उम्मीद थी कि लेफ्ट के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को कुछ अच्छा हासिल होगा, वहां भी नहीं हुआ। मेघालय में भी अच्छी खबर नहीं आई, सीटें कम हो गई और नागालैंड का संदेश भी बीजेपी एनडीए के पक्ष में गया। मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर हैं। सूरज जी, क्या कांग्रेस में माहौल क्या है? जाहिर सी बात है जिस तरह के परिणाम आए हैं, कांग्रेस चिंतन मंथन करने के सिवा इस समय कोई और कुछ कर भी नहीं सकती है। आपका क्या कहना है, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के नेता इस चुनाव परिणाम को, इस जनादेश को? देखिए मनोज जी, मैं इस समय कांग्रेस मुख्यालय में ही खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज चुनाव परिणाम का दिन है और कांग्रेस मुख्यालय में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर जो है ऐसा लगता है जैसे कोई आज मतगणना का कोई दिन नहीं है और किसी भी राज्य में कांग्रेस लड़ाई में नहीं, इस तरह का माहौल यहां पर बना हुआ है। ज़्यादातर बड़े नेता नदारदी हैं मुख्यालय से अभी तक, तो ये बताता है कि कांग्रेस की मनोस्थिति क्या है। अगर हम पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों की बात करें मनोज जी, तो सबसे ज़्यादा उनको उम्मीद मेघालय से थी और 2018 के चुनाव में वो सबसे बड़े दल भी थे वहां पर और उनकी सीटें भी सबसे ज़्यादा थी, वोट शेयर भी उनका ज़्यादा था। लेकिन उनके नेता भी चले गए और विधायक भी जो है वो टीएमसी में चले गए और टीएमसी उनके नेताओं के भरोसे ही वहां चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की स्थिति आपने देख ली होगी, 5 सीटों पर अभी वो लीड कर रहे हैं, जहां वो पिछली बार 21 सीटों जीत चुके थे। उसके अलावा जो उनके जितने बड़े नेता थे वो भी वहां से चले गए और केंद्र की जिस तरह से बेरुखी रही, मतलब दिल्ली से जो नेता थे वो जिस तरह से वहां उनको चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए था वो नहीं उतरे। अब इसका अंदाजा से लगाइए कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस समय राहुल गांधी है और वो भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने दावा किया था कि इस समय कांग्रेस के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, इमेज बिल्डअप की बात हो रही है। लेकिन मेघालय जैसे राज्य में जहां पर 75% से ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, ट्राइब पॉपुलेशन है, लंबे समय तक उन्होंने राज्य में सत्ता में रहे हैं, वहां पर उन्होंने मात्र एक दिन शिलोंग में रैली जाके कर दी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक ही दिन वहां रहे और कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता लगभग वहां पहुंचे नहीं खाना पूर्ति के लिए। चूंकि मैं खुद 11-12 दिन मेघालय में रहा मनोज, तो वहां पर मैंने देखा वो जो भी केंद्र के तरफ से नेता भेजे जाते थे पीसी कर लेते थे शिलोंग में, उसके बाद चले जाते थे। तो एक परसेप्शन वॉर में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी। ऐसा लगता था कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। लेकिन मेघालय घूमने पर हमें ऐसा लगा कि कांग्रेस चूंकि वहां पुरानी पार्टी है, उसका आधार है, उसके वोट है, उसका कैडर वहां है, लेकिन कैडर को ऐसा आभास हो गया कि पार्टी खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पार्टी के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मुकुल संगमा, वो टीएमसी चले गए और उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया कि अगर एनपीपी का मुकाबला वहां कोई कर सकता है तो वो टीएमसी मुकुल संगमा के नेतृत्व में कर सकता है और इस तरह का माहौल बनने लगा। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी आप देखिए 2 सीटें जीती थी और गैर आदिवासियों में ज्यादा उसका जनाधार है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से प्रधानमंत्री के 2 रोड शो जनसभाएं हुई, गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने वहां कैंप किया हुआ था। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी कि अपने जनाधार को किस तरह से बढ़ाया जाए और आप देख रहे हैं कि 5 सीटों पर भी वो आगे हैं और कहीं ना कहीं गैर आदिवासी वोटों का कंसोलिडेशन करने में वो कामयाब रहे। उसके अलावा यूडीपी आप देखिए जो क्षेत्रीय पार्टी है। जी मनोज जी। सूरज जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के तमाम नेताओं ने लगातार दौरे किए, लगातार सभाएं की इन तीनों राज्यों में। जाहिर सी बात है आप जिस तरह की तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय की दिखा रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, यह कांग्रेस की स्थिति को बयां कर रहा है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मेघालय में कांग्रेस की पिछली बार सीटें ठीक ठाक थी, कम हो गई, ये सीटें या जनाधार जो कांग्रेस का है, क्या इसमें कोई
वो कौन खा गया? टीएमसी ले गई, कौन ले गया मेघालय में? और दूसरी बात, कभी कांग्रेस का दबदबा होता था पूर्वोत्तर राज्यों में, आज कांग्रेस एक एक करके न केवल राज्य गंवा दिए उसने, बल्कि सीट जीतने के लाले पड़ गए हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर हम डेमोग्राफिकल सिचुएशन देखें मनोज जी, तो मेघालय जैसा राज्य तो बिल्कुल कांग्रेस के मुफीद रहा है, लंबे समय तक उन्होंने राज किया है, लेकिन और पिछली बार भी सबसे बड़ा दल थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनके सारे विधायक, 21 विधायकों वाली पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी विधानसभा में, आज स्थिति ये हो गई थी उनकी कि उनके एक भी विधायक नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष भी उन्हीं के जो सबसे बड़े नेता मेघालय के हुआ करते थे, मुकुल संगमाओ चले गए। तो जिस तरह से हमने असम से एक कड़ी देखी थी मनोज जी कि हिमंत बिश्व शर्मा जिस तरह से गए, और हिमंत बिश्व शर्मा ने एक तरह से स्क्रिप्ट लिख दी पूर्वोत्तर भारत के। ऐसा लगता है कि एक एक करके कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे जिनका जनाधार हुआ करता था, वो पार्टी छोड़कर चले गए। अभी इसका या तो आप ये कहते हैं कि दिल्ली के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी उन तक पहुंचने की ज़्यादा कोशिश कर रही है, या और रीजनल पार्टीज़ को, जैसे अगर आप देखें, आप कहें कि जनाधार कहाँ गया, तो एनपीपी जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं कर्नाट संगमा के पिता थे। पीए संगमा एक कद्दावर कांग्रेस के मेघालय के नेता हुआ करते थे, गारो हिल से ही वो आते थे। आज उनके पुत्र ने एनपीपी बनी, और आज एनपीपी जो है 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर पर सरकार बनाती है। और जिस तरह से मतदान हुआ था उसके तुरंत बाद एनपीपी का बयान आया था कि हम पोस्ट पोल अलायंस के लिए तैयार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी थी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एनपीपी आज जो है वो भी कांग्रेस थी, टीएमसी जो पूरी लीडरशिप मेघालय में खड़ी है वो भी कांग्रेस ही है। उसके अलावा जितने वहाँ पे सब रीजनल पार्टीज हैं, चाहे यूडीपी की बात करें, पीडीएफ की बात करें, वीपीपी की बात करें, हिल काउंसिल की बात करें, या फिर गारो काउंसिल की बात करें, तो ये सारे नेता कहीं ना कहीं आप देखेंगे कांग्रेस से ही निकले थे। अब उसमें संवाद की कमी कह सकते हैं हम कि, और दूसरा जो विंसेंट पाला को आपने कहा, on what my colleague Suraj just said, is this lack of vision, lack of connect with the people in the state, and lack of communication from the central leadership, which is costing the Congress state after state, and especially in a region that you have ruled for so many years? नहीं, कोई एक कारण नहीं है, ये सभी कारण मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार प्रश्न उठता है कि जो लोग मुख्यमंत्री जैसे पद के ऊपर भी रह चुके, वो लोग पार्टी छोड़ के क्यों जाते हैं? तो एक तो ऊपर के नेतृत्व की अनदेखी जो है उसका कारण है, संवाद नहीं है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि चुनाव लड़ने के लिए आपको साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो कांग्रेस नेतृत्व अगर साधन उपलब्ध नहीं करवा रहा, और ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनके अंदर अपने पास उतने साधन अर्जित करने का सामर्थ्य नहीं है, तो अब दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं ममता बनर्जी, उन्होंने इन सबको प्रश्रय दिया, इनको साधन उपलब्ध करवाए ताकि ये जोर शोर से चुनाव लड़ सकें। इसीलिए आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है वही तृणमूल कांग्रेस बन गई, सब विधायक भी चले गए, इनके मुख्यमंत्री भी चले गए। तो उसके साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व को चिंता ही नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए कोई तैयारी की आवश्यकता है, कहीं मोबिलाइजेशन की, साधन की, सब की आवश्यकता है। तो कोई योजना नहीं है, कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि किस प्रकार से भाजपा की जो चुनौती सामने आई है उस चुनौती का सामना करना है। जी, Absolutely. I think, Manoj, that's an important point about how the Congress, the grand old party, they've lost state after state. And particularly because after the Bharat Jodo Yatra, you claim to have, it being a very, very successful movement. And now after that, you're losing state after state. Ajit ji, if we talk about the Trinamool Congress, they, of course, were banking on Mukul Sangma and his popularity. He's been a former chief minister also of the state. And he bringing in that element of leadership, bringing in the party cadre. Has that benefited the Trinamool Congress on the ground? Has the party made inroads into the state that would help it in future? Yes, देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज़ ये आपको बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ मेघालय पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो मेघालय में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि विंसेंट पाला और जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें और इनमें दोनों में गुटबाजी था। और इंटायर पैन इंडिया आप उठा के देखेंगे, राजस्थान उठाएंगे तो राजस्थान में भी आपको गुटबाजी नज़र आ जाएगी। दो बड़े ग्रासरूट नेता होंगे, जनाधार वाले नेता होंगे, उनके साथ कोई अनबन होगा। आप कर्नाटका जाएंगे, कर्नाटका में भी देखेंगे कि दो तीन जनाधार के नेता हैं जिनका आपस में खींचतान चल रहा है। तो कांग्रेस बहुत लंबे समय तक शासन की है, सत्ताधारी दल रही है। तो यहाँ गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे
पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप कमजोर हुआ है और वो उस चीज़ को कॉप अप नहीं कर पा रहा है, उसका प्रॉपर समाधान नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हर जगह इन दोनों के बीच में जो समस्या हुई, जिसकी वजह से वो छोड़ के गए मुकुल संगमा गए। लेकिन हालांकि बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला है, लेकिन दो पार्ट होने की वजह से कांग्रेस के जो कैडर्स हैं उसमें एक दो भाग में गए। मुख्यमंत्री रहे हैं मुकुल संगमा और अच्छी इमेज है उनकी, उसके बाद उनके जाने से एक, हालांकि अभी भी अगर वोट शेयर उठा के देखेंगे आप, जब अगर पूरा इलेक्शंस खत्म हो जाता है तो कांग्रेस का वोट शेयर अच्छा खासा होगा। और इस तरह की समस्या मुझे लगता है सिर्फ मेघालय में नहीं है। नहीं, मेघालय पैन इंडिया, ये समस्या पैन इंडिया, ये नागालैंड में आप देखिए ना, आप त्रिपुरा से उठाइए, त्रिपुरा में जो है लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरी समस्त पार्टी जो है उठ के चली गई थी ये बीजेपी में, जो ब्रांडेड उसको कहा जाए कि न्यू ब्रांड, वो जो है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, सीधा तो वही चीजें जो है सीधी आपके मेघालय में, नागालैंड में तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है अब इधर। एनडीपीपी एनपीएफ में वहाँ बार एनपीएफ में जो है बार जो है वो त्रिपुरा में जो नई पार्टी जिसकी हम आज इतनी बात कर रहे हैं, मिस्टर कौशल, which has emerged as the X factor in the Tripura elections, perhaps it's been a difficult morning for the BJP because the numbers have been fluctuating. त्रिपुरा में भी ये जो चैलेंज दिया है मिस्टर कौशल, ये नई त्रिपुरा मोथा पार्टी ने, कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर तो आएगी अभी आने वाले टाइम में, बिकॉज एक इमर्जिंग चैलेंज है फ्रॉम अ ट्राइबल पार्टी, और जिस तरह के प्रोमिसेस वो कर रहे हैं, इट इज़ रेजोनेटिंग वेल विद अ लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। और एक दूसरा एक जिस बारे में काफ़ी बात भी हुई कि वो बीजेपी के फेवर में जाएगी या अगेंस्ट में जाएगी, वाज द चेंज ऑफ लीडरशिप। तो क्या वो बैकफायर किया है बीजेपी के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है नंबर्स में? नहीं, वो जो नेतृत्व परिवर्तन है वो तो भाजपा के पक्ष में ही गया है, क्योंकि जो इनकम्बेंसी थी 4 साल की, वो तोड़ने में भाजपा सफल हुई। इस तरह का रिजल्ट भी नहीं आता। लेकिन ये ट्राइबल पार्टी तो बननी ही थी, क्योंकि जो प्रद्योत हैं वो बहुत अरसे से कांग्रेस के नेतृत्व के साथ उनके मतभेद चल रहे थे। कांग्रेस ने कोई बहुत इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, उनकी जो आपत्तियां थी, उनके जो कॉन्सर्न्स थे, उनको वो किसी तरीके से एड्रेस नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ अब भाजपा में एक क्षमता है, उनके लिए ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि उनको टिपरा मोथा के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, पर भाजपा का नेतृत्व जो है वो बड़ा व्यावहारिक है। तो वो जो ये नई उनके सामने चुनौती आई है, उसका सामना करने के लिए वो लचीलापन दिखाएगा, कहीं ना कहीं उनको साथ लेने का प्रयास भी करेगा, और उनकी जो शक्ति है उसको अपने साथ जोड़ करके आगे चलने का प्रयास करेगा। Absolutely. So let's see how that happens in the times to come. But in the meanwhile, the Deputy Chief Minister of Nagaland has reacted to the results and the trends that are coming at this hour. So let's listen. Our alliance in DBP and BJP were very much ahead, and we are going to get a thumping majority to form the government under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri Nipir Rio. In fact, my colleague Amrendra is now joining us from the BJP headquarters. Amrendra, किस तरह का माहौल है बीजेपी में? त्रिपुरा थोड़े नंबर्स में उतार चढ़ाव के बाद अब लग रहा है कि बीजेपी ने हाफवे मार्क क्रॉस कर लिया है। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? 3 में से 2 राज्य तो कम से कम बीजेपी के पास वापस आ रहे हैं। बिल्कुल टीना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में खासा अच्छा माना जा सकता है। और ख़ास कर बात करें अगर त्रिपुरा की तो जिस तरह से नंबर गेम नज़र आ रहा था त्रिपुरा में कि कहीं ना कहीं बहुमत के आसपास पहुंच रही है, इस वक्त के रुझान से तो यही तस्वीर साफ है कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपने जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार कर लेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। जो सबसे बड़ी जो बात मैंने पहले भी बताई और इस वक्त भी आप जो रुझान है उसमें
देख सकते हैं जो इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, जो बीजेपी की अलायंस थी, वो कहीं ना कहीं ट्राइबल बेल्ट में जो उनके पास जिम्मेदारी थी वो वहाँ पर कमज़ोर हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो टिपरा मोथा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से प्रद्योत माणिक देव वर्मन ने पूरे चुनाव के दौरान मेहनत की और आदिवासियों को एक छत्र के नीचे लाके रखा और उन्होंने जिस तरह से ट्राइबल्स की समस्याओं को एड्रेस किया है, तो उससे साफ उसका असर जो त्रिपुरा में है वो टिपरा मोथा के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो टिपरा मोथा का जो गणित है, जो सीटों का जो आंकड़ा है वो 15-16 के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन सबसे जो कमजोर पार्टी जो नजर आ रही है, जिसके चुनाव से पहले एक बड़े बड़े दावे थे, कांग्रेस और लेफ्ट, हालांकि दोनों राइवल पार्टी थी, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने गठबंधन करके चुनाव में लड़ा और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का दावा कर रहे थे स्टेट में, जो धराशायी साबित हो रहा है। सुदीप राय बर्मन की बात करें जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 7 बार के अगरतला से विधायक हैं, अकेले कांग्रेस के दम पे उनसे उनको उम्मीदें थी, लेकिन उनका भी वो जादू नहीं चल पाया। सीटों वाइज अगर मैं बताऊं तो जो चोरिलम विधानसभा है, चोरिलम विधानसभा में डिप्टी स्पीकर जिष्णु देव वर्मन बहुत आगे चल रहे हैं इस वक्त की राउंड में और सीधा उनका जो सीधा मुकाबला है वो टिपरा मोथा के साथ है। इस समय टाउन बोरदली जो सीएम माणिक शाह हैं उनकी सीट पर भी सीएम काफ़ी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं जो केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक है इस बार धनपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं और धनपुर के लिए मैं आपको बताऊं, धनपुर एक अहम सीट मानी जा सकती है त्रिपुरा में, क्योंकि पिछले 25 सालों से धनपुर जो सीट है वो सीपीएम के खाते में जाती थी और सीपीएम के जो मुख्यमंत्री थे माणिक सरकार, वो उनकी पैतृक एक सीट मानी गई है, उससे ही वो जीतते आए। हालांकि 2013 और 2018 में प्रतिमा भौमिक उस सीट पर लड़ी थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से 2023 में वो सीट पर लड़ रही हैं और सीधे टक्कर वहां पर उनकी सीपीएम से है। इसके अलावा मैं बताऊं कि राजीव भट्टाचार्य जो हैं बनमाली पुल से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी खासा अच्छा कर रहे हैं। अंबासा हो, गोमती हो, इसके अलावा कमला नगर हो, सारी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जो टक्कर है वो टिपरा मोथा के साथ है। चूंकि वो ट्राइबल वाला जो एरिया है उस पर टिपरा मोथा की पकड़ खासी अच्छी मानी जा सकती है। तो जो नंबर का जो फिगर का जो आप देख रहे हैं, जो बहुमत के आंकड़े का जो मैजिक फिगर है 31 वाला, उसको तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टच कर रही है अभी तक के रुझान में। और फाइनल जो तस्वीर आएगी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे वहां पे सरकार बनाए। कमजोर जो पार्टनर है उनका, उनके साथ है कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत, बट भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बना रहे हैं। रही बात अमरेश जी, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहता हूं त्रिपुरा के बारे में। आपने कई दिन वहां लगाकर चुनाव को बहुत करीब से कवर किया। एक तरह से त्रिपुरा लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, करीब 25 साल शासन लेफ्ट में वहां पर किया, कांग्रेस ने भी लंबे समय वहां राज किया। यह दूसरी बार हो रहा है जब बीजेपी वहां पर बहुमत अपने दम पर उसके आसपास हासिल कर रही है। क्या ऐसे मुद्दे रहे जिसे जनता ने बीजेपी में भरोसा इतना व्यक्त किया, जो जनादेश दिखा रहा है हमें, जो संकेत आ रहे हैं, जो परिणाम उभर के सामने आ रहे हैं, और लेफ्ट और कांग्रेस जो मिलकर चुनाव लड़े, जिस लेफ्ट पे इतने समय भरोसा त्रिपुरा की जनता ने किया, क्या वो भरोसा क्यों टूटा? इधर गौरव जी इधर आइए। पृथ्वी, मैं देखिए आपको साफ तौर पर बताऊं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त ट्राइबल्स के लिए काम किया वो खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि ट्राइबल्स की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही। ट्राइबल्स की वो हर योजनाएं जो केंद्र सरकार से निकली हो, राज्य सरकार से निकली हो, वो लगातार ट्राइबल्स एरिया में गई हैं। लेकिन जो एक गणित जो मैंने बताया, इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जिसके साथ अलायंस था, वो कहीं ना कहीं इस बार कमजोर पड़ा। अगर आप 2018 के आंकड़े देखेंगे तो 2018 में उनके पास 8 सीटें थी और 13 सीट पे उनका अलायंस हुआ था। इस बार 6 सीटों पे आईपीएफटी लड़ रही है, जिसमें से 6 सीटें में से 1 सीट मुश्किल से आती हुई दिखाई दे रही है। रही बात कांग्रेस और लेफ्ट की, बहुत अहम सवाल ये मैं बता सकता हूं कि कांग्रेस और लेफ्ट लगातार जो उनका किला था वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। उसमें खास वजह यह है कि लेफ्ट से जो नाराजगी थी 25 साल
तक लेफ्ट से एक नाराजगी रही है, उसको लेके जो ट्राइबल्स का जो बेल्ट है उसमें खासी नाराजगी देखी गई है। और चूंकि लेफ्ट की एक विंग है, जो मैंने करीबी से वहां पे देखा, लेफ्ट की एक विंग है जो ट्राइबल गण परिषद के नाम से लेफ्ट ट्राइबल क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन 25 सालों में जो लेफ्ट की सरकार होने के बाद भी ट्राइबल्स को जो मूलभूत जो सुविधाएं थी वो नहीं मिली, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है टिप्रा मोथा को होता हुआ दिखा। टिप्रा मोथा के साथ एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि टिप्रा मोथा ने जो काउंसिल के चुनाव थे, काउंसिल के चुनाव में 2018 में जो काउंसिल चुनाव हुए त्रिपुरा में 25 में से 18 सीटें जीती। और उसके बाद प्रद्युत जो माणिक देव वर्मा ने, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया, लेकिन 2023 से पहले वो एक उनके पास एक बूस्टअप था उसके राज्य में आदिवासियों के लिए काम करने के लिए। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई टिप्रा मोथा और 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए और 20 सीटें उन ट्राइबल्स बेल्ट को दी, जिसमें this was about Tripura and Meghalaya, but if you also talk about Ajit ji, if you look at Nagaland, the BJP and the NDPP, of course, are way ahead. They are set to form a government once again. What is the 2040 calculation that the BJP and the NDPP went ahead with? And now a lot of the BJP leaders are claiming कि अगर हमने अकेले भी लड़ा होता तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। देखिए, अगर वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ विपक्ष था ही नहीं। वहाँ जो है वो विपक्ष जो है लास्ट में 4 बचे एनपीएफ के, वहाँ सभी पार्टी एनपीएफ से निकली हुई हैं। जो एनडीपीपी भी है वो एनपीएफ से ही निकली है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ वहाँ पे कि वो वहाँ पे तो विपक्ष था ही नहीं। वो उसके बाद फिर जब बीजेपी और इन लोगों में रिफ्ट हुआ और ये लोग एक दूसरे के खिलाफ भी कैंडिडेट्स पुट किए हैं। एलजेपी जो है वो एनडीपीपी के खिलाफ चुनाव लड़ी है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ी है। एलजेपी लगभग 4 सीटों पे लीड कर रही है, एनसीपी भी 4-5 सीटों पे लीड कर रही है अभी। तो जो छोटी छोटी पार्टियां, जेडीयू, ये लोग जो है आपस में, इन लोगों का भी, जो बीजेपी और इन लोगों के भी अलायंस में बहुत ज़्यादा पवित्रता नहीं थी। ये लोग भी आपस में भी लड़ रहे थे कि किसी को कम सीटें आ जाएं तो मुझे चांस मिले, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो अगर आप ये इस इलेक्शंस का देखेंगे तो वहाँ पे एनडीपीपी और अपोजिशन के नहीं होने की वजह से जितने भी कैंडिडेट्स थे, जो एमएलए थे, जो आप मेघालय अगर लेते हैं या अगर नागालैंड की बात लेते हैं तो पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन होता है, जो और लोकल बहुत कम संख्या में वोट होते हैं और बहुत छोटा एरिया होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से पहचानते हैं। तो पर्सनालिटी बेस्ड बहुत ज़्यादा इलेक्शंस होते हैं। तो ज़्यादातर जो एमएलए थे या मिनिस्टर्स थे या जो पहचान वाले एमएलएज थे वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा जो है, चाहे वो मेघालय हो, मेघालय में एनपीपी बहुत बड़ी पार्टी बनी। तो ऐसा नहीं कि एनपीपी के लिए बड़ा लोगों के अट्रैक्शन था या बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो अट्रैक्शन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो मूल कारण है कि वहाँ पे अपोजिशन था ही नहीं। दूसरा है वहाँ नागा से रिलेटेड समस्याएं हैं, ग्रेटर नागालैंड की मांग होती है, उससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं। लेकिन वो उन सब चीज़ों के बीच में लोगों को लग रहा है कि उसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की है। लोग जा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। पहले उन लोगों को बहुत उतना कनेक्शंस नहीं लगता था, तो बीजेपी ने एक रीइन्वेंट किया है उन सब चीज़ों को। तो उससे उनको लगता है कि मैं पार्ट हूँ और ये सब धीरे धीरे सॉल्यूशंस होगा। दूसरा है कि तीनों राज्यों में, अगर तीनों राज्यों की बात करें तो तीनों राज्यों में पीएम कई बार गए, लगातार गए। पिछले 5 सालों में कुछ 50 बार गए, 50 बार गए। और मंत्री भी वहाँ एक्टिव रहे। खुद वहाँ पे जो नीडा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। हेमंत विश्व शर्मा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, उनको अच्छा पॉलिटिकल मैनेजर माना जाता है। तो इसकी वजह से जो है जाहिर सी बात है, सब चीज़ों की वजह से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी, अगर सरकार के खिलाफ कोई नॉन परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी, जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं, और ऑल्सो एक डेवलपमेंट परसेप्शन था। दोनों चीज़ों को कंबाइन करके वहाँ पे ये लोग निकाल ले गए। और यहाँ पे त्रिपुरा में तो ऑल टुगेदर देखिए, त्रिपुरा में तो जो पीएम आवास है लगभग 2.5 लाख लोगों को दिया गया था। लास्ट में धान खरीदी की गई। एक साल पहले सीएम चेंज कर दिया गया। तो एंटी इनकम्बेंसी बैकफायर करने का तो सारा काम किया ही था भारतीय जनता पार्टी ने। जो एक ओवन हो जाती है, कोई भी अगर चीफ मिनिस्टर अगर अच्छा भी काम कर रहा है तो अगर वो बहुत ज़्यादा
पॉपुलर नहीं हो पाया है तो एक एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो जाती है। तो जो इन लोगों की जो ज़्यादातर जो है वो बेनिफिशियरीज जो योजनाएं थी उसका डायरेक्ट लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शंस के रिफ्लेक्शन से ये लगा। जाहिर सी बात है अजीत जी, जो आपने कारण बताए बीजेपी की जीत की और जो अपोजिशन जिस तरह से बटा हुआ था, कहीं ना कहीं जो बिखराव था विपक्षी दलों में, उसका खामियाजा विपक्ष को इन तीनों राज्यों में अलग अलग ढंग से उठाना पड़ा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आ रहा है, वो ये आ रहा है कि किस तरह से टीना जी कि वहां पर बीजेपी ने अपने आप को खड़ा किया इन तीनों राज्यों में। अगर नॉर्थ ईस्ट की हम राजनीति को देखें, एक समय बिल्कुल भी इस तरह का नहीं लगता था कि बीजेपी इन राज्यों को जीत पाएगी। अगर मैं बिल्कुल केवल एक दशक पहले अगर मनोज जी देखें तो एक दशक पहले बीजेपी वहां कहीं नहीं थी। अब जिस तरह से उनका फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, ये उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ये रणनीति समझनी पड़ेगी कि आखिर कांग्रेस से कहां चूक हुई कि एक एक करके कांग्रेस ने अपने सभी राज्यों को लूज करा, अपने नेताओं को लूज करा। बीजेपी ने ना केवल कांग्रेस से उसके राज्यों को छीना जीता, बल्कि एक एक करके जो कांग्रेस के बड़े नेता नॉर्थ ईस्ट के थे उनको भी भाजपा ने अपने दल में शामिल करके कहीं ना कहीं पूर्व उत्तर राज्यों से कांग्रेस का एक तरह से सफाया कर दिया। लेकिन एक बड़ा मुद्दा विकास का भी रहा है टीना जी। जिस तरह से बीजेपी ने विकास की पिच पर अपने आप को खड़ा किया इन पूर्वोत्तर राज्यों में कि विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना कुछ कर रहे हैं, उसको भी एक बड़ा एजेंडा बना के, बड़ा मुद्दा बना के इस चुनाव में बीजेपी ने कहीं ना कहीं रखा। हम उस बात पे भी बात करेंगे टीना जी, किस तरह से 24 से पहले बीजेपी ने इन तीनों राज्यों को जीतकर एक प्रकार से जो राष्ट्रीय राजनीति में संदेश दिया है, उसके क्या मायने हैं, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पे आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। बड़ा दिलचस्प एक चुनाव रहा इन तीन राज्यों में, कह सकते हैं। बिल्कुल, दो में तो बीजेपी की सरकार क्लियरली है विद रीजनल पार्टनर्स, लेकिन मेघालय में अभी पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि एनपीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी से उनकी बातचीत शुरू हो गई है, but whether or not both these parties will once again come together to form a government is something that we'll have to wait and watch for at least a few more hours until there's an official clarity on whether the coalition will go ahead. But in the meanwhile, and you made an important point, Manoj, about how putting that thrust on development in the Northeast, trying to, bring them to the mainstream, bring them closer to the mainstream, to the mainland India, that could have helped the BJP sail through with such good numbers. So we'll continue to delve more on that and get aspects from guests who are joining us on the program. We have with us in the studio senior journalist Mr. Roshan Gaur, who's joining us, and he'll be sharing his thoughts about the numbers that have been coming through from the three states. Roshanji, welcome to the program. Through the morning, we've been speaking to a lot of people about what may have led to the BJP becoming a formidable force in the Northeast region.